यहाँ पे लिखा है 0.1234 zeros are there and then there's 64 raised to 2 by 3 divide by 0.2016 raised to 3 by 4. Yes? हाँ. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या हो जाएगा 64 upon 10 raised to 6 हो जाएगा 2 by 3. Now when there's a division, first we find out what it is actually divided with. So this is 16 by 10 raised to 4 and this is 3 by 4. Yes? Now when I do division, it is nothing but multiplication with the reciprocal. So if I multiply, I have to reciprocate. 2 raised to 6 upon 10 raised to 6 whole raised to 2 by 3 multiply with 10 raised to 4 upon 2 raised to 4 whole raised to 3 by 4. Is it clear? Next, this is 2 by 10 raised to 6. So 1 by 5 raised to 6 raised to 2 by 3 into 10 by 2 क्या हो जाएगा 5 raised to 4 raised to 3 by 4. So this say 3 ones are 3 twos are. So this is actually 1 upon 5 raised to 4 into 5 raised to 3. So your answer should be 1 upon 5. So 5 raised to minus 1 will come. Is it clear? Seventh वाला नोट कर लो 7th वाले को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Yes. So Yes बेटा. recently we had this science test. So how will we get the results? Teachers will be correcting you. Teachers will be correcting your copies and then they will be sending you the marks. Application में आपको marks भेजेंगे. ठीक है? Okay, sir. Sir, written. Done? Let's go with the next question now. Question number 8 और 10 देख लेते हैं अभी. Okay. Question number 8 में क्या दिया हुआ है आपको? 9 square plus 40 square. Now this is Pythagorean triplet now. Do I need to solve this? This would be 41 का square. Yes, sir. Square और root हो जाएगा 41. तो आपको actually 41 का cube निकालना है. ठीक है? Probably C would be the answer. ठीक है? Please can you show? ठीक है? क्या आप चाहते हैं मैं solve करूं इसको? Yes, sir. I also did 9 square, so 81, and 40 square, 1600. हाँ तो 1681. So that will be 41 का square. 41. हाँ, 41 square. So then आपका 41. square square root से कट जाएगा तो 41 का cube बचेगा ना? ठीक है? Sir, not understanding. But did you see the question? Question is there is in front of you. Yes, sir. क्वेश्चन में क्या लिखा है 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर और ये होता है 3/2. आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? m स्क्वायर Sir, answer will be 41 cube, but 41 cube means क्या बोल रहे हो? m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2. So your m over here is 9, 40 and 41. So 9 square plus 40 square gives you 41 का square. आप चाहो तो ऐड कर लेना. तो 41 का क्यूब. ठीक है? 41 का क्यूब नहीं बैठ रहा है क्या? 41 into 41 into 6891. Yes, sir. Yes, sir. 6891 है ना. इसमें इतना कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, काफी आसान क्वेश्चन है. ठीक है ना? 8th आप कर लोगे. नेक्स्ट 10. 9th is also there. 9, 10, 12, 14, 15. Okay. 9, 10, 12, 14, 15. 12. Okay, so what is 9th question? 8 raised to 0 minus 7 raised to 0. But it is 8 raised to 0 is 1. 7 raised to 0 is also 1. 1 minus 1 is 0. तो 0 into कुछ भी दिया हो तो 0 ही होगा. तो ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है ना? ओके. नेक्स्ट 10th में क्या लिखा है? 81 की पावर x जो है वो 1/1 अपॉन 1 to 5 की पावर y है. ठीक है ना? उसको y कर देना. दिख रहा है मैं गामा लग रहा है बट वो y है. ठीक है?
x and y are integers, then find 12xy. अच्छा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार. 81 की पावर x लिखा हुआ है, 1/125 की पावर y है ना. आपको 12xy निकालना है. अच्छा, तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं कोई कांस्टेंट k है. तो 3 की पावर में अगर मैं 4 की पावर x रेस करता हूँ तो k है. तो 3 क्या है, k की पावर 1/4x हो जाएगा. ठीक है. यस, श्योर. Sir, didn't I understood? Can you explain again? एक सेकेंड, देखो हम क्या बोल रहे हैं. What I'm saying is, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 12xy मुझे ढूंढना है. 12xy, ठीक है, 12xy है. ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, 81 की पावर x अपॉन 125 की पावर y, ये दिया हुआ है k. ठीक है ना. अब क्या कभी 81 की कोई पावर और 125 की कोई पावर इक्वल हो सकती है क्या? कभी नहीं हो पाएगी ना. कब होगी इक्वल? जब x और y 0 के बराबर हो. ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0. क्लियर है? ज्यादा रॉकेट साइंस हम लगा ही नहीं रहे हैं. ठीक है. 11th क्वेश्चन देख लें. सर वो ऊपर वाला नहीं समझ में आया. कौन सा वाला? 10th वाला. हाँ. अरे 81 की पावर और understood. 125 की पावर कभी इक्वल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता. हम्म. ठीक है ना. तो पावर 0 होगा तभी 1 हो जाएंगे ना दोनों. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. अच्छा. ठीक है. तो दोनों 0 0 है, तो x और y 0 है, तो 12 इंटू एक्स वाई भी 0 होगा, है ना. नेक्स्ट 6561 रेज टू 0.125, ठीक है, प्लस 3125 रेज टू द पावर ऑफ 0.2. तो इनको पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो तो पता चले कि आपको किसकी पावर में कन्वर्ट करना है. तो 6561 1/8. 1/8, वेरी गुड. और 3125 1/5. 1/5. तो ये 6561 किसकी पावर 8 है? ऑब्वियसली 3 की पावर 3. हाँ. 3 रेज टू 8 है, और ये 1/8 हो जाएगा, और ये 5 की 5. पावर 5 है, 1/5 हो जाएगा ना. पावर्स कट जाएंगे ऐसे. So 3 plus 5 8. ठीक है ना. प्रीटी इजी क्वेश्चन. हम्म. तो 11th भी हमने कर लिया है. नेक्स्ट कौन सा So, बोल रहा है? 12. यस बेटा. 12. सर वो 1/8 कैसे हो गया था, मुझे समझ नहीं आया. 0.125 को 1/8 कैसे लिख सकते हो आप? लिखो ना 125/1000, फिर 25 का टेबल चला दो आप. ठीक है ना. या 125 का टेबल ही अगर आपको आता है तो आप चला सकते हैं. ओके सर. इनको रिड्यूस कर लें आप. ठीक है ना. यस. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई? x की पावर y जो है वो 64 है, और y जो है मेरा 1 नहीं है. ठीक है ना. Then the find the sum of the greatest possible values of x upon y and the greatest possible value of y by x. ठीक है. find the sum of the greatest x by y की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है और y by x की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, वो आप ढूंढें. ओके. तो x by y की वैल्यू सबसे बड़ी कब होगी? जब y सबसे छोटा होगा, द स्मॉलेस्ट. 8 raised to 2. 8 square. 8 स्क्वायर है ना. 8 स्क्वायर 1 ना बोल रहा है रख लेंगे ना. ठीक है. तो लेकिन इसको एक्चुअली ऐसा मेंशन भी करना चाहिए. सर मैंने सॉल्व करा सारी मेथड से, पर आंसर नहीं आ रहा है. एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, वन मोर थिंग शुड बी गिवन. एक्स वाई को उसको मेंशन करना चाहिए कि हमको इंटीजर ही लेना है. नहीं तो क्या होगा, देखो मान लो मैंने 256 एक्स का वैल्यू ले लिया. ठीक है. या मैं बोल लेता हूँ 64 का स्क्वायर ले लो आप. ठीक है. 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 से डिफरेंस 39. ठीक है ना. और 196, तो 4096 आ जाएगा. ठीक है ना. 4096 अगर मैंने x की वैल्यू ले ली और y की वैल्यू मैंने हाफ ले ली,
तो भी तो मेरे को यही मिलेगा ना 4096 रेज टू हाफ. विल आई गेट 64? यस. इस केसेस में जो मेरा x बाय वाई हो जाएगा वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा 4096 अपॉन हाफ. ठीक है ना. तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है. उसको x और y डिफाइन करना होगा कि क्या होने चाहिए. दैट हैज टू बी डिफाइंड कि x और y क्या होने चाहिए. ठीक है. समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ऐसे तो कोई स्टॉपेज ही नहीं है ना. आप जितना y छोटा लोगे उतना x बड़ा ले लो. ये तो नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा. इंटीजर के केसेस में क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 है, तो 8/2 विल बी 4. यस. नेक्स्ट, अब x को छोटे से छोटा लेना है और y को बड़ा लेना है आपको. तो 2 रेज टू 6 gives you 64. तो यहाँ पे 2/6 है तो ये क्या आ जाएगा 6/2 which is 3. यस. यस और नो, यही आ जाएगा. Yes, sir. Find the sum of the greatest possible value of x by y और y by x की सबसे बड़ी वैल्यू बताए. तो 4 और 3 आपका आंसर आ जाएगा which will be summing up to 7. Yes. Answer is given 67. Yes, sir. आंसर 67 दिया है. अच्छा, तो 67 एक्चुअली किस केसेस में हो सकता है ऐसा अगर हम करें तो देखो, हमने एक्चुअली अभी तक एक ही केस लिया. अगर हम केसेस को इंटरचेंज कर लें, फॉर एग्जांपल x बाय y के दो So केसेस 4 निकालता to हूँ. 3 is also there. 4:3. नहीं 4:3 नहीं, आपके यही केसेस में आ जाएगा. देखो, अगर मैं बात करता हूँ पहले x बाय y की बात करते हैं. ठीक है ना. x बाय y बड़ा होना चाहिए तो y सबसे कम होना चाहिए. ठीक है. और अगर y बाय x की बात करते हैं तो x सबसे कम होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोचूं, लेकिन इसने y लेने को ना बोला है ना, 1 ना बोला हुआ है आपको लेने के लिए ना y का वैल्यू. Yes, sir. क्योंकि अगर, अच्छा देखो, हम अगर नहीं तो भी आएगा तो 7 ही आपका. इफ यू स्टिल कंपेयर, लेट्स से हम यहाँ पे 64 रेज टू 1 कर देंगे तो भी 64 ज्यादा से ज्यादा आ सकता है. नहीं, आंसर शुड बी 7 ओनली. आप ऐसे चाहो तो कितना भी बड़ा लेके आ सकते हो. देखो कैसे बताऊं मैं. हमने एक क्वेश्चन ले लिया था, जैसे 64 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे ले लिया था, है ना. उस केसेस में तो नंबर और बड़ा हो गया. तो यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो आंसर 7 ही आना चाहिए. ठीक है. इसको आप 7 ही करेक्ट कर दो आंसर. ठीक है ना. 67 आप नहीं ला सकते. 67 लाने के लिए आपको y1 रखना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू कीप y एज 1. तो जब आप अगर y की वैल्यू 1 रखोगे तो उस केसेस में 64x हो जाएगा. तो x बाय y आपका 64 हो जाएगा. और y बाय x हमने जैसे अभी निकाला है, ठीक है ना, y बाय x आपका हो जाएगा 6/2 विच इज 3. तो y बाय x आपका 3 हो जाएगा. तो उस केसेस में आपका आंसर 67 आ जाएगा. अदरवाइज नहीं आएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना. चलिए, तो नेक्स्ट ले लेते हैं. तो करेक्ट कर लें उसको आप. ठीक है ना. शुड बी 7. y not permissible equal to 1, so should be 7 for sure. So we have done this as well. ये भी हमने कर लिया. 9, 10, 12 कर दिया. 13th मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ है. 14, 15, 17 और 19 क्या हो बेटा? 14, 15, 17 sir. है ना. Let's do that. 14th में क्या है, 7 की पावर है 5x - 8, 5 की पावर है x + 2. ये होगा 30625 ना. अब 30625 को प्राइम फैक्टराइज कर दो ना. क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन? So it is not coming 7, it is coming 5 and something 3. यस. तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 की पावर 30625 की अगर मैं बात करूँ तो 5 एक बार आ जाए यार. एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया. तो 30 कौन सा नंबर था, 30625. उसमें अगर हम 5 निकालते हैं तो कितनी बार आ रहा है 5? Screen sharing is off.
आ तो रहा है, ठीक है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 5⁴ इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है ना, 5⁴ इंटू 7 स्क्वायर। तो x की वैल्यू फॉर श्योर 2 आ जाएगी ना यहाँ से। दिख रही है आपको सबको मेरी स्क्रीन? यस, आवाज आ रही है? यस सर। तो 5⁴ Yes, इंटू sir. 7 स्क्वायर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। कैसे 2 आई, कंपेयर करना है आपको सिर्फ। भाई x प्लस 2 मेरा 4 के बराबर है, x मेरा 2 के बराबर है। सिमिलरली 5x माइनस 8 मेरा 2 के बराबर है, तो 5x मेरा 10 के बराबर है, तो x मेरा 2 के बराबर है। सही है ना? यस सर, अंडरस्टूड। वेरी सिंपल। 15 देख लो, 15 देख लो। 15 में क्या लिखा है? a⁴x b⁴y c⁴z इक्वल है, a क्यूब है वो b² c के बराबर है। तो आपको बोल रहा है बताइए 3/x माइनस 2/y किसके बराबर होगा? अच्छा, ओके। तो लेट्स सी, इसको मैं k मान लेता हूँ, है ना। तो a मेरा क्या हो जाएगा? देखो जब भी मैंने आपको बताया इक्वालिटी होल्ड कर दिया तो उस इक्वल को k के बराबर मानते हैं, ठीक है ना। तो a क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? k की पावर 1/y हो जाएगा। c क्या हो जाएगा? k की पावर 1/z हो जाएगा। यस। अब एक रिलेशन और भी दिया है आपको, ये क्या दिया हुआ है भाई? k की पावर 1/x का क्यूब, क्यों a क्यूब लिखा है ना, k की पावर 1/y का स्क्वायर, k की पावर 1/z। तो ये क्या बोल रहा है? k की पावर 3/x इज इक्वल्स टू k की पावर 2/y प्लस 1/z। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या पता चला मुझे? कंपेयर कर लेता हूँ पावर्स को। तो कंपेरिजन करने पे पता चला 3/x इज 2/y प्लस 1/z। तो यहाँ से मुझे पता चला 3/x माइनस 2/y किसके बराबर है? 1/z के। सो डी विल बी योर आंसर। यस, यस सर, वेट लेट अस टॉकिंग। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की सबसे पहली ट्रिक जो आपको समझनी पड़ेगी वो हमेशा यही है पैटर्न। अगर नंबर्स इक्वल है तो उसको किसी कांस्टेंट k के बराबर इक्वेट कर दिया। अब जो बेस है आपका, बेस किसको बोला जाता है? जिसके पावर में एक्सपोनेंट हो। तो बेस को हमेशा आपको निकालना है इक्वालिटी के कंडीशन के साथ। तो a1 k की पावर 1/x आ जाएगा, b भी k के टर्म्स में, c भी k के टर्म्स में, और abc में जो रिलेशन, abc में ये रिलेशन दिया है। तो इन दैट रिलेशन यू आर सपोज्ड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ऐसे ही करना है। यस सर, इट विल। डन। ठीक है, श्योर? यस सर। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका? 14 हो गया। नेक्स्ट 17। 17 भी सेम, एग्जैक्टली सेम। देखो 17 में क्या करना है? इसी तरीके से 11 की पावर x, 3 की पावर y, 99 की पावर z, इसको हम क्या मान लेंगे? कोई कांस्टेंट k मान लेंगे। तो k की पावर 1/x कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। k की पावर 1/y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। k की पावर 1/z कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर हो जाएगा? 11 इंटू 3 इंटू 99। ठीक है, सबको पता चल रहा है? सर हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि k की पावर हमको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है ना बेटा, कितना होगा? तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे जब हम कुछ कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना। यस। अब देखो, तो ये 11 3s are, so this is I can say 11 into 3 into, can I say that this is further 11 into 3 into 3। 11 into 3 into one more 3 is there, है ना। मतलब 2 11 है और 3 3 है, ठीक है, 2 11 और 3 3 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से? देखो अब हमारा टास्क क्या बचता है? नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, हम क्या करेंगे? जितने भी ऑप्शंस हैं मेरे पास
उनको भी मैं सेम टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, के की पावर में जो रिजल्ट है उसको पावर में लिख रहा हूँ, के की पावर 2/z माइनस 1/y। तो कैन आई से दिस इज के की पावर 2/z अपॉन के की पावर 1/y, क्या मैं बोल सकता हूँ। और के Yes, की sir. पावर 2/z क्या हो जाएगा, 99 इंटू 99, और के की पावर 1/y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो कैन आई से दिस इज 99 इंटू 33। तो ये भी वही है, 99 इंटू 33 लिखा है। यस, Yes, sir. ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल, Yes, sir. Like a spoon. कॉपी कर लें आप। ठीक है, और इसका एक आंसर नहीं होगा, देयर कैन बी मेनी आंसर्स पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, आपको बनाना 33 इंटू 99 है। तो 33 इंटू 99 बनाने के क्या क्या तरीके हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, x का मैं स्क्वायरिंग कर दूं या x लिखूं, और यहाँ पे देखो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। व्हाट कैन आई से, मैं अगर यहाँ पे पावर 2 में रेस करता हूँ, ये 2/x हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 हो जाएगा, के की पावर 2/x। यस, अब 11 दो बार तो आ गया मेरे पास, अब 3 बार चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ के की पावर 3/y इज 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो के की पावर 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर इंटू 27 का क्यूब, विच इज नथिंग बट 99 इंटू 33। क्या आपको समझ आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, आई वेंट फॉर दी ऑप्शंस, क्योंकि जिसके भी मैं बहुत सारे आंसर्स निकाल सकता हूँ, तो मैं आंसर निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, अदर देन आई गो फॉर दी ऑप्शंस एंड सी कौन सा आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे। इज इट क्लियर, सबको मेरी आवाज आ रही है। Yes. Yes, sir. So that's the reason why I went for the options. Okay, Sir, explain question 16 also. 16 also. A raised to B raised to C is 256. Then find the maximum possible values of ABC where A, B, C are possible integers. हाँ, जैसे इसमें इंटीजर लिखा है ना, वैसे ही वहां पे भी इंटीजर होना चाहिए था, जो एक हमने क्वेश्चन किया 12th वाला, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स टेक 16। इसमें क्या लिखा है, A की पावर B की पावर में C है, वो है मेरा 256। तो क्या मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लगा सकता हूँ, पॉसिबल वैल्यू जो मैक्सिमम है वो ABC का मैक्सिमम निकालना है। हाँ. ABC के मल्टीप्लिकेशन कब मैक्सिमम होगा, ABC का मल्टीप्लिकेशन तब मैक्सिमम होगा जब मेरे पास A B C तीनों में से कोई एक सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मैं B और C को 1 रखता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना, B और C को 1 रखता हूँ, तो A की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं 256, 56. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या गई 256, खत्म। श्योर, अगर मैं B और C को कुछ भी थोड़ा सा भी बड़ा रखूंगा ना, तो A मुझे काफी ड्रास्टिकली छोटा रखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस फैशन। B को मान लेते हैं मैंने 2 रख दिया, C को 1 ही रखा, तो A आई कैन ओनली कीप एज 16, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, A मैं ज्यादा से ज्यादा 16 रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा ABC का मल्टीप्लिकेशन 32 हो जाएगा, ठीक है ना, तो दैट इज नॉट द मैक्सिमम, मुझे मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 18th में डाउट है कोई, 19th में कोई डाउट है, Yes, sir. 19. 19th में डाउट है। So let's take question number 19th। 19th में क्या लिखा है, 1331 की पावर में -x। अच्छा, आपको फ्राइडे कल आपका टेस्ट है, आपको पता है, कल सबको मैसेज आ गया, सॉरी कल? परसों, परसों, sir. थर्सडे है ना, हाँ. फ्राइडे का आप लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट है, याद है ना आप लोगों को, Yes, sir. ठीक है। गूगल क्लासरूम पे आपको सबमिट करना है, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करते हो वैसे टेस्ट पेपर अपलोड होगा और आपको वहीं पे पेपर सबमिट करना है, ठीक है ना। टेस्ट पेपर क्लास वर्क में अपलोड होगा. हाँ, क्लास वर्क में ही सब कुछ, क्लास वर्क में ही दिखेगा आपको, ठीक है ना, सब कुछ क्लास वर्क में ही दिखेगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें लिखा होगा सब्जेक्टिव टेस्ट 1 रेशनल नंबर्स, और फिर आपको उसका पेपर भी अटैच होगा नीचे, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है वेयर x एंड y आर इंटीजर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3xy, तो 3xy की वैल्यू बताएं आप क्या होगी। Now again the same question, same concept, anything raised to something will always be equal when that thing is 0, ठीक है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल 0 आ जाएगा यहाँ पर। इज इट क्लियर। Can you explain again? बेटा जब बेस अलग होगा और पावर्स
कुछ अगर ऐसी हमें कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है ना, ये इक्वल कब होगा, जब x का वैल्यू 0 हो जाए और y का वैल्यू भी 0 हो जाए, उस केसेस में ही होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir, understood. ठीक है, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने यहाँ पे तो बता दिया लेकिन 17th क्वेश्चन में फिर क्यों XYZ 0 नहीं आया? क्योंकि बेटा क्या होता है, जब आप 19th क्वेश्चन रीड करते हो तो उसमें लिखा है कि x और y इंटीजर्स होने चाहिए, तब आप मुझे 3xy की वैल्यू बताओ। 17th क्वेश्चन में XYZ पे कोई कमेंट नहीं किया गया है, तो 1331 की कोई पावर 225 की पावर के बराबर हो सकती है, लेकिन जो वो वैल्यू होगी ना, वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी। और वो कैसे निकालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथम जब पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तब आप वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब लॉगरिथम पढ़ाना नहीं पढ़ाना वो भी पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप अपना रेगुलर स्टडीज को अच्छे से कर लेते हो तो आपको लॉगरिथम भी मैं पढ़ा दूँ। ठीक है, 20th देख लेते हैं। रूट ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई इज 9 एंड रूट ऑफ 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 32। तो आपको बताना है 2x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले कंपैरिजन करता हूँ कि 3 की पावर में x लिखा है, उसकी पावर में x प्लस वाई लिखा है, वो 9 के बराबर है। तो 9 क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर, सो x प्लस वाई अपॉन 2 विल बी 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है ना। यस। नेक्स्ट 2 की पावर 1/2 की पावर x माइनस वाई हो जाएगा 32। ठीक है ना, तो 2 की पावर x माइनस वाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, x माइनस वाई 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूंगा, ये क्या हो जाएगा, 2x विल बी 14, x विल बी 7। समझ आ गया आपको? दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, Add. ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो x 7 आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो y का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, -3। क्या लिख सकता हूँ, इज इट क्लियर? सर x 7 कैसे आया, x और y इक्वल थोड़ी है। x और y इक्वल थोड़ी ना, मैंने कहाँ बोला इक्वल है? नहीं तो 7 कैसे आया, मतलब ऐसे। देखो बताता हूँ क्या है। अभी हमारे पास अवेलेबल जो चीजें हैं वो क्या है, दो चीजें आई हमारे पास, है ना। तो इसको पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, बोलते क्या है। ठीक है ना, इसको हम बोलते क्या है ना, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो दो वेरिएबल्स में है। ठीक है, अच्छा इसकी मैं बात करता हूँ, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब Variables. मुझे इन दोनों में से वैल्यूज निकालनी है कि x और y की क्या वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इन दोनों को किस ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, आपस में कुछ भी मैनिपुलेशन करूं, तो दो लीनियर इक्वेशन जो है दो वेरिएबल में, उसे मुझे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सर आपने x की पावर 14 और y की पावर -3। सर मुझे समझ में आ गया, वो प्लस वार माइनस वाई कट हो गया इसलिए ना सर। हाँ ठीक है ना, अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन -y की वैल्यू फिर 3 कैसे आ गई जब +y मैं बता रहा -y हूँ। कट हो गया। x प्लस वाई कितना है, 4 है। यस सर। ठीक है, दूसरा x माइनस वाई 10 है। यस सर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 14 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। 7 हो जाएगा। x 7 हो गया। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा यहाँ से। अब y कैसे निकालोगे आप, किसी भी इक्वेशन में x डाल दो ना आप, क्योंकि इन दोनों में से ही आया है। ठीक है, Sir, if we will put x in the equation 4 1, so 7 plus dash is equal to 4 4, तो minus. y कितना आ जाएगा, -3। ठीक है ना, Okay, sir. Yes. तो आंसर 11। ठीक है, हाँ। इज इट क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, Yes, नोट sir. डाउन कर लो इसको आप लोग, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस को कभी भी दो को सॉल्व कैसे करते हैं, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग? so that we convert them into linear equation in one variable, okay, and get the answer from there of that variable, okay. Yes, sir. ठीक है, Now we'll start the next chapter. ठीक है ना। चलिए अभी चले नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करें क्या? Yes, sir. ठीक है, But कौन सा? कौन सा शुरू करूं, कौन सा पढ़ना है आपको बताओ? सर आपने लीनियर इक्वेशन